Okay. So we were doing the matrices, how to find the transpose of the matrix. How to find the transpose of the matrix. Anyone may convey the message to Muhammad Saqib. He must write his ID. Otherwise, he will not be allowed. Abdullah Harun. Okay. So columns are interchanged with the rows. Columns will be interchanged with the rows. So that will be the transpose of the matrix. Now, types of the matrices. Null matrix. No element. If no element, this is the null matrix. No element inside. This is the null matrix. Zero matrix. If all elements are zero, if all elements are zeros, just like that, and it is denoted by n, sorry, null matrix, zero matrix, and it is denoted by O. It is denoted by M. So zero matrix will be denoted by 0. So 0 will be just like that. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. All elements are 0, zeros. That is the zero matrix. Square matrix. If number of rows equal to number of columns. If the number of rows and number of columns are equal in a matrix, that is called the square matrix. It may be 1 by 1, it may be 2 by 2, it may be 3 by 3, it may be 4 by 4, etc. Identity matrix or diagonal matrix.
if all the elements other than the diagonals, other than the primary diagonal are zeros. This will be a square matrix. Diagonal matrix is a square matrix. स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद उनकी टाइप्स हैं डायगोनल मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स a square matrix if all the elements other than the elements in the primary diagonal are zeros. तो ये इस किस्म का होगा डायगोनल मैट्रिक्स सपोज D. स्क्वायर मैट्रिक्स है सपोज 3 by 3 का. It should be the square matrix, this type of the square matrix. तो इसमें 3 by 3 का है तो यहां हमारे पास 1 है, फिर 0 है, फिर 0 है, फिर 0 है, -1 है, फिर 0 है, 0 है, 0 है और ये मे बी 2. This is a square matrix. There are 3 diagonals, 3 rows and 3 columns. There are 3 rows and 3 columns. There are 3 rows and 3 columns. There are 3 rows and 3 columns. So that is the square matrix. स्क्वायर मैट्रिक्स में 2 डायगोनल्स होते हैं, एक ये होगा, ये डायगोनल होगा. दिस इज द वन डायगोनल which is starting from the left top to the right bottom. लेफ्ट टॉप से लेफ्ट साइड के टॉप से शुरू हुआ और राइट साइड के बॉटम पे गया, ये कहलाता है प्राइमरी डायगोनल. ये क्या कहलाएगा? प्राइमरी डायगोनल. एक ये है जो राइट टॉप से शुरू हुआ और लेफ्ट बॉटम तक गया, ये कहलाएगा सेकेंडरी डायगोनल. दिस इज द सेकेंडरी डायगोनल. जब हम डायगोनल की बात करते हैं तो हम प्राइमरी डायगोनल की बात करते हैं. जब हम डायगोनल की आमतौर पर बात करते हैं तो प्राइमरी डायगोनल की बात करते हैं. सो दिस इज द प्राइमरी डायगोनल या राइट डायगोनल. तो ये प्राइमरी डायगोनल है, ये सेकेंडरी डायगोनल है. तो अगर कोई ऐसा हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें सिर्फ प्राइमरी डायगोनल में तो नंबर हैं, बाकी सब जीरो जीरोस हैं, अदर देन प्राइमरी डायगोनल आर जीरोस. ऑल द एलिमेंट्स other than the primary diagonals are zeros, so that is called the diagonal matrix. So diagonal matrix की ये पहचान है कि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा. It should be square, that means the number of rows and number of columns are equal. Then all the elements other than the primary diagonal सब जीरो होंगे. प्राइमरी डायगोनल में सिर्फ आपको नंबर मिलेंगे, बाकी सब जीरो होंगे. So that is the diagonal matrix. ये प्राइमरी डायगोनल है, इसमें हमें यहाँ 1 है या -1 है या 2 है,
एक जैसे भी हो सकते हैं, या 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो ये कहलाएगा प्राइमरी डायगोनल। अच्छा, कौन-कौन आ गया अब? सैयद अब्दुल वाहिद, ओके, मोहम्मद खिजर, वजिया, बोलो, वो मसरूफ है। वजीफा, ओके, हाँ, अब्दुल अब्दुल्लाह काजिम, खिजर, सजन, बटन नहीं है, वो बोलो वो मसरूफ है। सैम, अब्दुल्ला, हारून, आयशा, हानिया, साकिब, सुहेब असलम, okay, so the elements, you may find the elements in the right diagonal or the primary diagonal only. The other elements are zeros. All the elements other than the primary diagonal are zeros, so that is called the diagonal matrix. तो सिर्फ राइट डायगोनल में, प्राइमरी डायगोनल में आपको एलिमेंट्स मिलेंगे, बाकी उसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब जीरोज होंगे। सिर्फ राइट डायगोनल में यानी प्राइमरी डायगोनल में आपको एलिमेंट्स मिलेंगे, प्राइमरी डायगोनल में आपको एलिमेंट्स मिलेंगे, बाकी सब एलिमेंट जीरो होंगे, सो दैट इज कॉल्ड द डायगोनल मैट्रिक्स। ये डायगोनल मैट्रिक्स होगा। ओके, उसके बाद है स्केलर मैट्रिक्स। उसके बाद है स्केलर मैट्रिक्स। ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स की किस्म है। This is another type of diagonal matrix. Scalar matrix. If all the elements in a diagonal matrix are equal, ये सब एलिमेंट्स इक्वल हो डायगोनल में, तो ये स्केलर मैट्रिक्स होगा। If all the elements in the primary diagonal are equal or similar or same, and the remaining elements are zero,
it is a scalar matrix. यानी राइट डायगोनल में जो हमारे पास प्राइमरी डायगोनल में जो एलिमेंट्स होंगे वो एक जैसे होंगे, बाकी सब जीरो होंगे। तो ये हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स है। सपोज एस, ये राइट डायगोनल है हमारे पास, प्राइमरी डायगोनल है ये। इसमें जो है हम ये अगर हम 4x4 का हमारे पास है तो ये k है 0 0 0 0 k 0 0 0 0 k 0 0 0 0 k। ये हमारे पास प्राइमरी डायगोनल में सब एलिमेंट जो भी हैं वो एक जैसे हैं और बाकी सब एलिमेंट जीरो हैं। बाकी सब एलिमेंट्स क्या हैं? जीरो हैं। मरियम नूर, तो सिर्फ प्राइमरी डायगोनल में हमारे पास एक जैसे एलिमेंट्स हैं, बाकी तमाम एलिमेंट जीरो हैं। सो दिस इज द स्केलर मैट्रिक्स। दिस इज द स्केलर मैट्रिक्स। उसके बाद है हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स। सी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स। आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स। वो कौन सा मैट्रिक्स होगा? अगर ये k की जगह ये सब 1 1 हो जाए, k की जगह सब 1 1 हो जाए, तो ये क्या कहलाएगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। वो भी स्केलर मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी स्केलर है क्योंकि सब एक जैसे होंगे, 1 1 होगा, लेकिन दे शुड नॉट बी अदर देन 1। 2 नहीं हो सकते सब। 2 हो जाएंगे तो वो सिर्फ स्केलर हो जाएगा, लेकिन अगर ये 1 1 हो जाएंगे तो यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। एंड इट इज डिनोटेड बाय आई। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आई। अगर ये 4x4 का है तो I4 लिखा जाएगा, दिस इज I4। ये 2x2 का होगा, ये सिर्फ 2 हो गए तो I2 होगा। सो IN यूं समझ ले, IN है, n/n। हम इसको जनरल लिख देते हैं IN। n इज द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। तो उसकी मिसाल ये हो गई। दिस इज अ स्केलर मैट्रिक्स। इट इज अ स्केलर मैट्रिक्स with all elements in primary diagonal are units। मीन्स 1। यूनिट कहते हैं 1 को। आर यूनिट्स यानी 1 ही होंगे सब। फॉर एग्जाम्पल I2 एक है हमारे पास, I2 इज इक्वल टू 1 0 0 1। राइट डायगोनल में, प्राइमरी डायगोनल में हमारे पास 1 1 है। अगर ये I3 है तो फिर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ये I3 हो गया हमारे पास, यानी 3x3 का मैट्रिक्स है ये हमारे पास। और उसके डायगोनल में 1 1 है, राइट डायगोनल में, प्राइमरी डायगोनल में बाकी सब जीरो हैं। तो ये यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगा। यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगा।
उसके बाद है हमारे पास इक्वल मैट्रिक्स। Equal matrices. Two matrices are said to be equal. Equal matrices. Two matrices are said to be equal. Are said to be equal if both have the same size। यानी अगर एक 2/2 है, दूसरा भी 2/2 है, एक 2/3 है तो दूसरा भी 2/3 होना चाहिए, और एक 3/2 है, दूसरा भी 3/2 होना चाहिए, सेम साइज होने चाहिए। जितनी एक की नंबर ऑफ रोज है इतनी ही दूसरे की भी नंबर ऑफ रोज होनी चाहिए, जितनी एक की नंबर ऑफ कॉलम्स है उतने ही दूसरे की भी नंबर ऑफ कॉलम्स होने चाहिए। एक तो ये शर्त है। दूसरी कंडीशन ये है, इफ बोथ हैव द सेम साइज एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। They have the same size and the corresponding elements are equal. Corresponding elements are equal का क्या मतलब है कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट अगर मैट्रिक्स ए में 5 है तो मैट्रिक्स 2 में भी वो 5 होना चाहिए, और फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट जो है, या अगर हमारे पास -3 है तो दूसरे मैट्रिक्स में भी -3 होना चाहिए। तो हर वो ये कहला देंगे कॉरेस्पॉन्डिंग, यानी हर प्लेस का जो एलिमेंट है वो इक्वल हो, साइज इक्वल हो, हर प्लेस का एलिमेंट इक्वल हो, तो वो कहलाएंगे इक्वल मैट्रिसेस। फॉर एग्जांपल, ये है हमारे पास 1 -1 0 3 2 5, ये है 2/3 का है, और बी हमारा एक मैट्रिक्स है, वो भी यही चीज है 1 -1 0 3 2 5। दोनों का साइज सेम है, 2/3 है, इसका भी साइज 2/3 है। इसका फर्स्ट 1 है, सेकंड -1 है, थर्ड 0 है। इसमें फर्स्ट 1 है, सेकंड -1 है, थर्ड 0 है। ये 3 है, 2 है, 5 है, 3 2 5 है। तो देयरफॉर ए विल बी इक्वल टू बी। तो दो मैट्रिसेस इक्वल होंगे अगर इनके एलिमेंट्स भी सेम है और साइज भी सेम है। आयशा शेरवानी, आयान शेरवानी। अगर हम इसमें कुछ इस तरह हो जाए, एक हमारे पास सी है, 1 -1 6 3 2 5। अब ये देखिए ये किसी के इक्वल है, इन दोनों में से ए या बी, ये सी जो है किसी के इक्वल है। इसमें फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में 6 है, इन दोनों में फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में 6 नहीं है। बाकी तो उसके 5 एलिमेंट सेम है, 1 -1 1 -1 3 2 5 3 2 5, इसमें भी वही है। लेकिन फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में एलिमेंट 0 है, इसमें भी, लेकिन वहां 6 है। डिफरेंट एलिमेंट्स एक डिफरेंट हो गया। देयरफॉर ए सी, A is neither equal to C,
एंड बी इज आल्सो नॉट इक्वल टू सी। सी जो है ना ए के इक्वल है ना बी के इक्वल है, जबकि ए और बी आपस में इक्वल है। तो एक एलिमेंट डिफरेंट हो गया, बाकी सब एक जैसे हैं, साइज भी सेम है, हर चीज सेम है, बट वन एलिमेंट इज डिफरेंट। तो हम कहेंगे ये इक्वल नहीं है, क्योंकि एक एलिमेंट डिफरेंट है, एक एलिमेंट डिफरेंट है। तो ये इक्वल एलिमेंट्स की बात हो गई। तो मैंने आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स बता दिए। सबसे पहले मैंने आपको मैट्रिक्स बताया। मैट्रिक्स क्या होता है? दिस इज आ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ डाटा। This is a rectangular array of data enclosed in the parenthesis or in the square bracket। या तो स्क्वायर ब्रैकेट से इसको इंक्लोज किया जाएगा या पैरेंथेसिस से, नॉट विद द ब्रेसेस। ब्रेसेस और कॉलम, ना तो ब्रेसेस से हम इसको इंक्लोज करेंगे, ना दो लाइनें डाल दें दोनों तरफ, उससे भी नहीं कर सकते। सिर्फ दो चीजों से इसको इंक्लोज किया जाएगा हमेशा, तो वो मैट्रिक्स कहलाएगा। या तो पैरेंथेसिस होगा या फिर स्क्वायर्स होंगे, स्क्वायर ब्रैकेट्स होगा। स्क्वायर्स, स्क्वायर ब्रैकेट जिसको हम आमतौर पर कहते हैं वो सिर्फ स्क्वायर ही है एक्चुअल। या फिर पैरेंथेसिस होगा, ये पैरेंथेसिस कहलाएगा। और अगर इस किस्म का होगा तो ये स्क्वायर्स कहलाएंगे। ये स्क्वायर्स है। ये भी ब्रैकेट की एक किस्म है। दिस इज अ टाइप ऑफ ब्रैकेट, स्क्वायर्स। और एक ये भी ब्रैकेट की टाइप है, ये कहलाती है आमतौर पर कर्ली ब्रैकेट कहते हैं, लेकिन ये क्या है? ब्रेसेस है। दिस इज द ब्रेसेस। तो मैट्रिक्स जो है ब्रेसेस से इंक्लोज नहीं होंगे, या तो पैरेंथेसिस से होंगे या स्क्वायर ब्रैकेट से, ब्रेसेस से नहीं होंगे। तो एक चीज ये हमने बताई। और इसका साइज कैसे लिखते हैं? पहले नंबर ऑफ रोज, फिर क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम, और पढ़ेंगे इसको नंबर ऑफ रोज बाई नंबर ऑफ कॉलम। फॉर एग्जाम्पल इस ब्रैकेट, इसमें क्या है? 2 रोज है, 3 कॉलम्स है, तो दिस इज 2/3। दिस इज आल्सो 2/3। दिस इज आल्सो 2/3। फिर हमने आपको ट्रांसपोज बताया, क्या होगा अगर नंबर ऑफ कॉलम्स को नंबर ऑफ रोज से एक्सचेंज कर दें, इंटरचेंज कर दें, नंबर ऑफ रोज को नंबर ऑफ कॉलम से इंटरचेंज कर दें, तो वो क्या कहलाएगा? ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। दैट इज कॉल्ड द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। तो उसके बाद हमने उसका साइज भी चेंज हो जाएगा, उसके एलिमेंट्स भी चेंज हो जाएंगे। वो एलिमेंट जो है अपनी जगह चेंज कर लेंगे, कुछ एलिमेंट्स। तो कुछ एलिमेंट्स अपनी जगह चेंज कर लेंगे, कुछ सेम रहे, मुमकिन है। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स बताई। सबसे पहले हमने बताया नल मैट्रिक्स, जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, दैट इज द नल मैट्रिक्स। फिर हमने जीरो मैट्रिक्स बताया, जिसके तमाम एलिमेंट जीरो हो, एक नहीं तमाम एलिमेंट जीरो हो किसी मैट्रिक्स में, सो दैट इज द नल मैट्रिक्स। फिर हमने आपको स्क्वायर मैट्रिक्स बताया। स्क्वायर मैट्रिक्स इज द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल, दैट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद हमने आपको स्क्वायर मैट्रिक्स की डिफरेंट टाइप्स बताई। पहली टाइप हमने बताया स्केलर मैट्रिक्स। पहली टाइप हमने बताया डायगोनल मैट्रिक्स। फिर हमने आपको वो भी बताई डायगोनल्स कितने किस्म की होती हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डायगोनल, प्राइमरी डायगोनल एंड सेकेंडरी डायगोनल। प्राइमरी डायगोनल क्या होती है? लेफ्ट टॉप से शुरू होती हैं और राइट टॉप तक, राइट बॉटम तक जाती हैं। लेफ्ट टॉप से शुरू होकर राइट बॉटम तक जो डायगोनल जा रही हो, वो क्या कहलाएगी? प्राइमरी डायगोनल या राइट डायगोनल। इसी तरह दूसरी डायगोनल जो लेफ्ट टॉप, राइट टॉप से शुरू हो और लेफ्ट बॉटम तक आए, राइट टॉप से शुरू हो और लेफ्ट बॉटम तक आए, वो कहलाएगी सेकेंडरी डायगोनल। और ये डायगोनल सिर्फ स्क्वायर डायगोनल स्क्वायर मैट्रिसेस में होते हैं। डायगोनल्स किस में होते हैं? स्क्वायर मैट्रिसेस में होते हैं, जिनमें रोज और कॉलम्स इक्वल हो, तो उन्हीं के हम डायगोनल्स की बात करते हैं। तो अगर प्राइमरी डायगोनल में नंबर्स हैं, उसके अलावा बाकी तमाम जो हैं जीरोस हैं, तो वो कहलाएगा डायगोनल मैट्रिक्स।
ये सब स्क्वायर मैट्रिक्स की बात होगी, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये स्क्वायर मैट्रिसेस होंगे। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगा? अ स्क्वायर मैट्रिक्स which contains the elements in the primary diagonal only, the other elements are zeros. Non zeros elements होंगे primary diagonal में, the other element are zeros, that is called the diagonal matrix. अगर किसी diagonal matrix में जो non diagonal elements, जो non zero elements है, यानी diagonal में जो elements है, if they are equal, that will be the scalar matrix. तो स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? एक डायगोनल मैट्रिक्स ही होगा, लेकिन डायगोनल में यानी प्राइमरी डायगोनल में नॉन जीरो जो एलिमेंट्स हैं हमारे पास वो सब इक्वल होंगे और बाकी सब जीरो होंगे सिवाय प्राइमरी डायगोनल के, तो वो कहलाएगा स्केलर मैट्रिक्स। और अगर स्केलर मैट्रिक्स में वो जो इक्वल एलिमेंट्स हैं नॉन जीरो, वो ए वन हो जाए, वो सब क्या हो? यूनिट्स हो, यानी वन हो, बाकी सब जीरो हो, राइट डायगोनल में जो भी एलिमेंट्स हैं वो वन 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 हो, सब वन हो, तो वो कहलाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स। तो ये हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस बताई आपको। अच्छा, अब है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। Two matrices can be added or subtracted if they have the same size. इक्वल की बात नहीं हो रही, साइज सेम होना चाहिए। नंबर ऑफ रोज एक के, दोनों के नंबर ऑफ रोज एक जैसी हो, दोनों के नंबर ऑफ कॉलम्स एक जैसी हो, तो वो मैट्रिक्स आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, अदरवाइज नहीं। अगर उनके साइज सेम नहीं है, एक मैट्रिक्स 2/3 का है तो दूसरा भी 2/3 का हो, एक मैट्रिक्स 3/2 है तो दूसरा भी 3/2 का हो, तो वो ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, अदरवाइज दे विल नॉट बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। Addition and subtraction of the matrices. Two matrices can be added or subtracted. If they have the equal sizes or the same sizes. एक मैट्रिक्स 2/2 का है, दूसरा भी 2/2 का हो, एक मैट्रिक्स 3/3 का है, दूसरा भी 3/3 का हो, एक मैट्रिक्स 2/3 का है तो दूसरा भी 2/3 का हो, एक मैट्रिक्स 3/2 का है तो दूसरा भी 3/2 का हो, दोनों के साइज इक्वल हो, तो वो ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। और कैसे ऐड और सब्ट्रैक्ट होंगे? their corresponding entries, their corresponding elements will be added or subtracted from each other. पहले तो ये देखना है वो हो भी सकते हैं कि नहीं हो सकते। अगर वो हो सकते हैं तो फिर हम करेंगे their corresponding elements will be added or subtracted यानी पहली रो पहले कॉलम के एलिमेंट्स पहली रो पहली कॉलम के एलिमेंट्स में ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा। अगर ऐड करें तो ऐड होगा, सब्ट्रैक्ट करें तो सब्ट्रैक्ट होगा। पहली रो का दूसरा एलिमेंट वो दूसरे मैट्रिक्स के पहली रो के दूसरे एलिमेंट्स में ही ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा। इसी तरह दूसरी रो का पहला एलिमेंट दूसरे मैट्रिक्स के दूसरी रो के पहले एलिमेंट्स में ही ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा।
तो ये कहलाते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, वो आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। बाकी सब जो है वो आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। केनेथ सज्जाद, तो याद रखें आप, when we say that first of all we will check whether they can be added or subtracted, तो वो कैसे चेक करेंगे? Their size will be checked. If the first, if both matrices have the same number of rows and the same number of columns, it means they can be added or they can be subtracted. अच्छा, वो ऐड या सब, ये हमने देख लिया कि ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। अब कैसे ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगे? हाउ कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड? The first element of the first matrix will be added or subtracted in the first element of the second matrix. The second elements will be added or subtracted in the second elements of the second matrix. In the same way, third element of the first matrix will be added or subtracted in the third element of the second matrix. Acha, second row ka first element will be added in the second row's first element. Second